دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مشہور پاکستانی شوبز پرسنالٹیز کی بات کریں گے جن کی سوشل میڈیا پر ہر پوسٹ ہی نفرت انگیز کمنٹس سے بھر جاتی ہے۔ اگرچہ ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے لیکن پھر بھی لوگ ان سے نفرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ان کا امیج ہی کچھ ایسا بن چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، کوئی اچھا کام بھی کریں تو لوگ ان کو نیگیٹو ہی لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کبھی بھی پازیٹیو رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ تو دوستو آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا ایک طرف تو مشہور شخصیات کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ انہی شخصیات کے لیے انتہائی سخت اور کڑی آزمائش بھی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی کریں، جہاں پر کچھ لوگ ان کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہیں پر زیادہ تر لوگ ان پر تنقید بھی کرنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو تنقید کرتے کرتے بہت زیادہ منفی ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کئی لوگ بد زبانی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر کچھ لوگ، کچھ سیلیبریٹیز خوش قسمت بھی ہیں کہ انہیں کبھی نفرت نہیں ملتی، لیکن وہیں پر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، بہت سے ایسے شوبز اسٹار ہیں جن کو عام ایک کنزیومر یا سوشل میڈیا صارف کی طرف سے صرف تنقید ملتی ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور شخصیات نے تو بعض اوقات ایسی تصویریں پوسٹ کر کے یا بیانات دے کر اس نفرت کو دعوت دی ہے جس سے وہ جانتے ہیں کہ لوگ بھڑک اٹھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ خبروں میں رہنے کی ایک کوشش ہو، یعنی یہ لوگ اپنے ساتھ نفرت کرنے والوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی نفرت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً کسی کے لیے بھی غیر مہذب تبصروں کو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ان کے لیے ایک ایسی مجبوری بن چکا ہے جسے وہ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ تمام تر نفرت کے باوجود بھی وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ فالو کی جانے والی پاکستانی پرسنالٹی سیلیبریٹی عائزہ خان کو بھی ہر وقت نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا کے بارے میں ہر چیز پسند ہے، لیکن اگر کوئی کمنٹ سیکشن نہ ہوتا تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ بہت سی دیگر مشہور شخصیات کی طرح انہوں نے نیگیٹو تبصرے کرنے کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پیجز کو پرائیویٹ کر لیا تھا، تاہم عائزہ خان کو اس سے آدھی نفرت بھی نہیں ملی جو کچھ دوسری پاکستانی شخصیات کو ملی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیات ہیں۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں وینا ملک، جو پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ایک طویل عرصے سے ایک متنازعہ شخصیت رہی ہیں، اب جب کہ وہ سوشل میڈیا پر پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور یہاں پر اب وہ سیاست پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ ان کے خلاف نفرت میں اضافہ ہی ہوا ہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ شوبز چھوڑنے جا رہی ہیں اور اپنی ڈریسنگ بھی پہلے سے بہتر کر لی، معقول لباس پہننا شروع کر دیا، لیکن ان سے نفرت کرنے والے پھر بھی نہیں رکے۔ اب جب سے ان کے سابقہ شوہر نے ان پر اپنے بچوں کے اغوا کا الزام لگایا ہے، لوگوں کی ان سے نفرت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وینا ملک کی شوبز میں واپسی کے بعد سے لوگ انہیں پہلے سے زیادہ جج کر رہے ہیں اور ان کا ٹویٹر فیڈ نفرت انگیز اور منفی تبصروں سے بھرا ہوتا ہے، اور اکثر اپنے انسٹاگرام پیج پر وہ نفرت انگیز تبصروں کو ڈیلیٹ کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور وینا ملک اپنے نفرت کرنے والوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا جانتی ہیں، لیکن اس سے ان کے کرٹکس کو تنقید کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ نفرت حاصل کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر ہیں عامر لیاقت مرحوم اور ان کی دوسری بیوی طوبہ عامر۔ یہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت میڈیا میں موجود تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک عالم کے طور پر کیا، عالم آن لائن سے، اور انہوں نے مختصر عرصے میں بہت سے فالوورز اور پاپولیرٹی بھی حاصل کی، لیکن اپنے پہلے شو سے لیک ہونے والی ویڈیوز کے ساتھ ہی وہ متنازع ہو گئے اور اس کے بعد ان کے لیے واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ انہیں اپنے ٹاک شوز پر بھی انتہائی نامناسب باتیں کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی زندگی میں ان کے پروگرام سے تو یہ لگتا تھا کہ ان کو یہ سب کچھ منفی توجہ کافی پسند ہے، یہاں تک کہ اگر وہ صدقے کے طور پر کھانا بھی غریبوں میں بانٹ رہے ہوتے تھے تو لوگ اس پر بھی کوئی مثبت تبصرہ نہیں کرتے تھے بلکہ منفی تبصرہ ہی کرتے تھے۔ طوبہ عامر لیاقت سے شادی کے بعد ہی میڈیا میں نظر آئیں۔ اسے دوسری عورت کے طور پر دیکھا گیا جس کا ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ افیئر تھا۔ پچھلے سال عامر لیاقت کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کی سابقہ پہلی بیوی نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے انہیں طلاق اس لیے دی تھی کیونکہ طوبہ عامر یہی چاہتی تھیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عامر اور طوبہ دونوں کو سوشل میڈیا پر کسی بھی پاکستانی مشہور جوڑے سے زیادہ نفرت ملی تھی، اور عامر لیاقت بھی سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹ پر جس طرح کے ریمارکس دیتے تھے اس وجہ سے وہ خود بھی مشکل میں پڑ جاتے تھے۔
फिर तीसरे नंबर पर यासिर हुसैन और इकरा अज़ीज़ हैं। उनका भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग उनसे नफ़रत करते हैं और वो काफ़ी एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पर। लोग ना सिर्फ नफ़रत करते हैं बल्कि इन दोनों का मजाक भी उड़ाते हैं। जिस तरह यासिर हुसैन ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स में इकरा अज़ीज़ को शादी के लिए प्रपोज़ किया, इसने किसी भी चीज़ से ज़्यादा उन पर तनकीद को जन्म दिया। इसके अलावा यासिर और इकरा ने शादी से पहले ही अपनी छुट्टियों की तमाम तस्वीर एक साथ शेयर कर दी और ज़्यादातर लोगों को उनका लिबरल स्टाइल पसंद नहीं आया, इसलिए आज तक इस जोड़े से नफ़रत पाई जाती है। उन्हें अक्सर तवज्जो के मुतलाशी करार दिया जाता है, यानी वो खबरों में रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। लोग उनके बारे में ये सोचते हैं, चाहे वो कुछ भी पोस्ट करें उनको नफ़रत ही मिलती है और मनफी कमेंट्स मिलते हैं। इस सारी नफ़रत की वजह से इकरा अज़ीज़ ने माजी में अपना ट्विटर अकाउंट इनएक्टिव भी कर दिया था और अब अपने फॉलोअर्स के लिए कमेंट्स सेक्शन को महदूद कर दिया है। इससे लोग मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पेजेस पर उन पर मज़ीद तनकीद करते हैं और दूसरी जानिब यासिर हुसैन अपने नफ़रत करने वालों को मुसलसल जवाब भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और ज़्यादा मुतहरक हैं। फिर चौथे नंबर पर आगा अली और हिना अल्ताफ़ को शादी के बाद दूसरे जोड़ों की निस्बत पहले से कहीं ज़्यादा नफ़रत मिलने लगी, क्योंकि बाज़ जोड़ों ने शादी के बाद बहुत अच्छी शोहरत भी हासिल की है, लेकिन आगा अली और हिना अल्ताफ़ को कुछ ज़्यादा अच्छी शोहरत नहीं मिली बल्कि मनफी शोहरत मिली। चूँकि पहले सारा खान और आगा अली के रिश्ते के बारे में सबको मालूम था और उनके फ़ैन्स की बड़ी तादाद थी, लेकिन जब आगा अली और हिना अल्ताफ़ की शादी की खबर सामने आई तो उनके फ़ैन्स अभी तक उनके ब्रेकअप की खबरों से परेशान हैं। इस शादी ने सबको चौंका दिया था और अगरचे दोनों मशहूर शख्सियात पहले ही अपना ताल्लुक़ तोड़ चुकी थी, लेकिन लोग फिर भी यही समझते थे कि आगा अली ने सारा खान को हिना अल्ताफ़ के लिए छोड़कर गलती की। इस जोड़े को इतनी नफ़रत मिली कि उन्होंने इस बारे में अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी बात की। अगरचे अब सारा खान की फलक शब्बीर से शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है, फिर भी लोग आगा अली और हिना अल्ताफ़ से नफ़रत करते हैं और उसकी वजह वही सारा खान हैं। फिर पाँचवें नंबर पर मौजूद आरमीना राना खान को फ़ैन्स की जानिब से हासी तनकीद का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर इसलिए कि वो उन नफ़रत करने वालों को जवाब देती रहती हैं, लेकिन ये जवाबात भी सिर्फ़ उनसे नफ़रत को बढ़ाने का ज़रिया बनते हैं। आरमीना राना खान इन ख़वातीन मशहूर शख्सियात में से हैं जो अक्सर अपने नामुनासिब लिबास में तस्वीरें पोस्ट करती हैं। हालांकि वो जानती हैं कि अवाम उन पर क्या रद्द-ए-अमल देगी, लेकिन एक वजह है कि पिछले कुछ सालों से उन्हें इतनी नफ़रत मिली है कि वो नफ़रत करने वालों को कई बार जवाब दे चुकी हैं और यहाँ तक कि उनके हवाले से कई दफ़ा पोस्टें भी कर चुकी हैं। जब उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टा पेज पर एक तस्वीर पोस्ट की तो उन्होंने बताया कि उनके इनबॉक्स में उन्हें जान की धमकी मिली थी। उन्होंने तस्वीर हटा दी और अपने इंस्टा पेज पर कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, क्योंकि वो बीमार हैं और नफ़रत करने वालों से थक चुकी हैं। फिर छठे नंबर पर एक और मशहूर सेलिब्रिटी हैं अलीज़े शाह, जो सोशल मीडिया पर नफ़रत कमाने वालों की रैंकिंग में छठे नंबर पर हैं। ताहम वो मुतअद्दिद स्कैंडल्स की ज़द में रही हैं और उसकी वजह उनका बोल्ड स्टाइल है। वो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये नहीं देखती कि सार्फिन उनके बारे में क्या सोचेंगे। यही वजह है कि जहाँ भी उनकी तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं वो अक्सर तनकीद का निशाना बनती हैं। अलीज़े शाह ने यह भी कहा कि वो अपने पेज से तमाम नफ़रत अंगेज़ तबसरे डिलीट कर देती हैं, लेकिन दीगर सोशल मीडिया पेजेस पर लोग पहले से कहीं ज़्यादा उन पर तनकीद करते रहते हैं। अगरचे अलीज़े शाह ने कुछ बड़े ड्रामों में काम किया और उनके क्रेडिट पर एक फ़िल्म भी मौजूद है, लेकिन नफ़रत करने वालों का ख़याल है कि उन्हें वाकई अपने अवामी इमेज पर काम करने की ज़रूरत है। अलीज़े शाह को ज़ाहिर है कि इसकी परवाह नहीं है कि वो ऐसी तस्वीर पोस्ट करती रहती हैं जिन पर उनको पता है कि लोग तनकीद करेंगे, लेकिन वो फिर भी करती हैं। फिर सातवें नंबर पर मौजूद शहरोज़ सब्ज़वारी को दरअसल लोगों ने बहुत पसंद किया था जब उनकी शादी हुई थी सायरा यूसुफ से। असल में वो दोनों मशहूर तरीन सेलिब्रिटीज़ थी जिनकी शादी हुई और उनके लाखों फ़ैन थे। यही वजह है कि जब उनका ब्रेकअप हुआ और बाद में शहरोज़ ने सद्दफ़ कमल से शादी की तो लोगों ने उनसे इस कदर नफ़रत की कि वो नफ़रत हासिल करने वाले मशहूर तरीन जोड़े बन गए। शहरोज़ सब्ज़वारी ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि सद्दफ़ कंवल उनकी ज़िंदगी में उस वक़्त आईं जब वो और सायरा बहुत पहले से अलग हो चुके थे, लेकिन किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। दूसरी तरफ सद्दफ़ कंवल इस बात पर ज़्यादा परेशान नहीं हैं कि उनसे नफ़रत करने वाले क्या कहते हैं। वो अक्सर इस बारे में कहती हैं कि ऐसे लोग कितने नामकूल हैं और कोई उन्हें कभी खुश नहीं कर सकता। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर वो अपनी कोई अच्छी तस्वीर पोस्ट करती हैं तो लोग उस पर भी तनकीद करते हैं और घटिया बातें करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग इस मशहूर जोड़े से नफ़रत करना पसंद करते हैं।
फिर 8वें नंबर पर महविश हयात ने अगरचे तमगा इम्तियाज़ हासिल करने के बाद अब तक बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोग इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। जब उनको तमगा दिया गया, इमरान खान की हुकूमत में उस वक़्त भी बहुत सी तनकीद हुई कि कौन सी खिदमात के सिले में दिया गया। इसके बाद उन्हें इतनी नफ़रत मिली और तनकीद हुई कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस बारे में ज़िक्र किया। उन्होंने ये दावा भी किया कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सोशल मीडिया के रद्द-ए-अमल और मुख्तलिफ़ ब्लॉगर्स की जानिब से की जाने वाली गलत रिपोर्टिंग की वजह से उनकी ज़िंदगी का इतना अहम लम्हा इस तरह का मोड़ ले लेगा। महविश हयात मुसलसल तनकीद की ज़द में है, क्योंकि जहाँ एक तरफ उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वहीं पर उनसे नफ़रत करने वाले भी मौजूद हैं। फिर 9वें नंबर पर आ जाते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि बोल्ड होने के बावजूद लोग सबा कमर को पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे नफ़रत करने वालों की तादाद में कमी नहीं आई। अब जब भी वो कोई बोल्ड फ़ोटोशूट अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, लोग उनकी तमाम अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन सबा कमर हमेशा अपने से नफ़रत करने वालों को सख्त अंदाज में जवाब देती रही हैं और ये बताती हैं कि उनकी इस तमाम नफ़रत का उन्होंने कोई असर कबूल नहीं किया। फिर 10वें नंबर पर हम सब की जानी पहचानी अदाकारा, इंग्लिश बड़ी अच्छी लहजे में बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने वाली मीरा, जो अपने बाकी तनाज़ात के अलावा इंग्लिश की वजह से अक्सर मीम्स बनते हैं, उन पर तनकीद होती है। तो उनको गुज़श्ता कई दहाइयों से ड्रामों और तनाज़ात की क्वीन के तौर पर जाना जाता है। उसके बहुत से नफ़रत करने वालों को यकीन है कि वो जानबूझकर सस्ती शोहरत के लिए ऐसे तनाज़ात पैदा करती हैं। मीरा को अक्सर अपने बयानात और अंग्रेज़ी बोलने की नाकाम कोशिशों की वजह से नफ़रत बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो शायद इस लिस्ट में मौजूद वाहिद पाकिस्तानी मशहूर शख्सियत हैं जिनसे नफ़रत के साथ साथ उनका हर वक्त मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पोस्ट के ज़रिए लोगों को इस बारे में बात करने से नहीं रोकती। ना ही उन्होंने कभी लोगों से इस हवाले से ज़्यादा सख्त लहजे में बात की है। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर करती हैं, या अगर जानबूझकर नहीं भी करती तो उनको इस हवाले से कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।